اگر آپ کے عقائد پر یا آپ کے نظریات پر سوال اٹھا دیا جائے اور آپ کے پاس جواب نہ ہو تو آپ کہیں میرے جذبات مجروح ہو گئی، تاکہ کہیں پہ چپیڑیں پڑ جائیں، کہیں پہ کوئی کچھ بھی مار جائے. بھلے وہ سیاسی قیادت ہو، بھلے وہ مذہبی قیادت ہو، کسی کو مسائل سے کوئی دلچسپی. آپ الزام رکھ کر کے اس کو گستاخ کر کے قتل کر دیتے ہیں. ایک بینک گارڈ نے ایک مینیجر کو مار دیا ہے. آپ یہ جو کو سلمان کا علاقہ ہے یا کچے کا علاقہ ہے، یہ ہے ہی جرائم پیشہ لوگوں کی اماج گاہ. آپ کا دوست ہوں شاہد یوسف خان. امید ہے کہ آپ سب دوست ٹھیک ہوں گے اور امن و امان سے ہوں گے. میرے ساتھ اس وقت موجود ہیں ہمارے ایک معروف سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ، ٹورسٹ بھی ہیں، ایکٹیوسٹ بھی ہیں اور ایک متنازع شخصیت بھی ہیں. پتہ نہیں وہ بچ بچا کے یہاں میرے پاس کیسے پہنچے. آئیں ان سے ملاقات کرتے ہیں. ہمارے ساتھ ہمارے دوست ہیں قمر نقیب خان، جو آج ڈیرہ غازی خان تشریف لائے ہیں اور ہم انہیں ویلکم کہتے ہیں. ست بسم اللہ جی آیاں نو. قمر بھائی کیسے ہیں؟ سر الحمدللہ بہت ٹھیک ٹھاک ہوں، شکر ہے مالک کا. آپ کا شکریہ، آپ نے مجھے ویلکم کیا، آپ نے مجھے استقبال کیا، محبت دی آپ نے، اور سب دوستوں نے بہت محبت دی. آپ کے جتنے کزنز تھے میں ان کا سب کا شکر گزار ہوں. اور الحمدللہ سب ٹھیک ٹھاک ہے. آپ لوگوں کی محبتیں سمیٹ رہا ہوں. نہیں، یہ تو ہماری روایات میں ہے. ویسے عموماً پاکستان کے ہر کلچر میں ہماری بھی روایات میں ہے کہ مہمان جو بھی ہے تو ان کو ان کی رسپیکٹ کرنی چاہیے. قمر بھائی، آپ ٹور پہ نکلے تھے راول پنڈی سے کراچی، اور کراچی سے پھر واپس آپ نے پنجاب کے جنوبی پنجاب کے علاقے میں آئے ہوئے. یہاں سے پھر دوبارہ آپ نے پنڈی جانا ہے. کتنے دن کا ٹور تھا اور کیا سمیٹا اس ٹور سے؟ سر ٹور کوئی ٹارگیٹڈ نہیں تھا کہ کتنے دن میں نے نکلنا ہے. میں 22 جنوری کو نکلا تھا گھر سے. اس کے بعد سے ابھی قریباً 1.5 مہینہ ہو چکا ہے کہ میں گھوم پھر رہا ہوں. راولپنڈی سے پہلے گیا تھا میں لاہور میں قریباً 1 ہفتہ رہا تھا. وہاں پر کچھ دوستوں سے ملاقاتیں تھیں، کچھ ضروری کام تھے وہ کرنے تھے. پھر لاہور سے ایک دن میں خانے وال پہ رکا تھا. کبیر والا میں ہمارے ایک دوست ہیں ان کے گھر. وہاں سے نکلا تو ایک دن رحیمیہ خان، باولپور، وہ سارے علاقے دیکھے. پھر وہاں سے اگلے دن نکلا تو ترنڈا محمد پناہ میں رکا تھا. وہاں سے نکلا تو سکھر بریک کی تھی. سکھر 4-5 دن ہمارے دوست ہیں لالا شمس پٹھان، ان کے گھر تھا. پھر سکھر سے نواب شاہ اور یہ حالہ کے ایریے دیکھے میں نے. سندھ کے؟ جی ہاں. اور پھر حیدرآباد میں رکا. حیدرآباد میں 1-2 دن سٹے کیا. وہاں سے پھر کراچی گیا تھا. کراچی میرے اپنے نانکے ہیں، اپنے گھر ہیں، تو وہاں 10-15 دن ٹھہر کے پھر ایک مشاعرے کی دعوت تھی. اس کے لیے تو پھر میں نے موٹر سائیکل کراچی میں ہی کھڑا کر دیا تھا. وہاں سے پھر ٹرین میں آیا فیصل آباد، بائک اٹھایا اور واپسی کے لیے نکل آیا. واپسی پہ آتے ہوئے ہم نے اندرون سندھ جو ہے تھرپارکر بھی، ٹھکراٹو اور سردار گڑھ، اس طرح سے بلوچ کلچرل ڈے پہ ہمیں دعوت دے دی تھی. ہمارے دوست ہیں کھوسو عبدالرحمان کھوسو صاحب. عبدالرحمان کھوسو صاحب صوبت پور کے. جی صوبت پور کے. انہوں نے دعوت دی تھی تو ہم لوگ ڈیرہ اللہ یار اور صوبت پور گئے تھے. تو بہت ہی اچھے لوگ، بہت ہی اچھا ایکسپیرینس. پورا پاکستان میں نے دیکھا، پورا پاکستان کے لوگ دیکھے، علاقے دیکھے، اور پھر ہم نے کمپیریزن بھی کیا کیونکہ ہم لوگ پنڈی اسلام آباد کے رہنے والے لوگ ہیں نا. تو ہمیں یہ دیکھنا ضروری ہوتا ہے کہ کیپٹل میں اور اندرون سندھ اور اندرون پنجاب کے علاقوں میں کیا فرق اور کیا صورتحال ہے. ہم لوگ تو شہر میں بیٹھ کے یہی سمجھتے ہیں جی سب ٹھیک ٹھاک ہے، سب اوکے چل رہا ہے، کسی قسم کا کوئی مسئلہ نہیں ہے. تو لیکن مسائل ہیں اور ان کے حل کے لیے کوششیں تقریباً صفر ہیں. نو ون از سیریس. بھلے وہ سیاسی قیادت ہو، بھلے وہ مذہبی قیادت ہو، کسی کو مسائل سے کوئی دلچسپی نہیں ہے. بس جیسے ہیں جیسے آئے کی بنیاد پہ چل رہے ہیں بس. نہیں، اچھا قمر بھائی یہ بتائیں، ٹور کا بنیادی مقصد کیا تھا؟ علاقے ایکسپلور کرنے تھے، دوستوں سے ملاقاتیں کرنی تھی، یا کوئی اور مقصد؟ سر ٹور کا مقصد اول تو اپنی سیٹسفیکشن، اپنی جو بھی آپ کی جمالیاتی حص ہے، یہ
सबसे ज़्यादा आपको अट्रैक्ट करती है। दूसरी बात ये कि पाकिस्तान और दुनिया में पूरी घूम चुका हूँ, लेकिन बाइक पर घूमने का मुझे शौक़ था। ठीक है। तो मैंने इसीलिए घर से बाइक उठाई और निकल पड़ा। नहीं, बाइक पे कोई खौफ नहीं आता, क्योंकि पाकिस्तान के हालात ऐसे हैं। हमारे इलाकों में भी ये होता है कि अगर आप मगरिब के बाद मोटर बाइक पे निकले, और खसूसन बड़े बाइक में, तो बड़ा डर रहता है कि कोई छीन ना ले, क्योंकि नुकसान, और एक तो रिस्क का नुकसान है, दूसरा जान का भी खदशा रहता है कि कोई मसला ना हो। मुझे मेरे अपने रिश्तेदारों ने कराची से और बलूचिस्तान से उन्होंने कहा था कि यार सिंध में, अंदरून सिंध नहीं जाना, बलूचिस्तान नहीं जाना, छीन लेंगे, डकैत हैं, चोरी हो जाएगी। तो लेकिन मैंने देखा कि पूरा अमन इलाका है, बहुत ज़्यादा चोरी चकारी नहीं है। हाँ, इक्का दुक्का केस होते होंगे, लेकिन जितना ज़्यादा मीडिया इसको पोर्ट्रे करता है ना, हम लोग मतलब अपर पंजाब में या इस्लामाबाद के हम बैठ के सोचते हैं कि यार सिंध में हर बंदा लुटेरा है, हर बंदा डकैत है, या बलूचिस्तान में हर बंदा लुटा हुआ है। ऐसा नहीं है, बहुत अच्छे लोग भी हैं, प्यार करने वाले लोग भी हैं, और जो नेगेटिव इमेज पेश किया जाता है मीडिया पर, वो इतना बुरा नहीं है। आप पाकिस्तान पूरा घूमें फिरें, बहुत अच्छे लोग हैं, बहुत अच्छा पूरा अमन पाकिस्तान है, ऐसा कोई मसला नहीं। नेगेटिव इमेज से याद आया कि लोग कहते हैं कि कमर भाई भी नेगेटिव इमेज पेश करते हैं सोशल मीडिया पे। सर, नेगेटिव इमेज पेश करना और इस्लाह करना, ये दो मुख्तलिफ और बड़े फ़र्क हैं। एक बड़े भाई की तरह, एक बाप की तरह अपनी कौम को समझाना कि देखो आप लोग गंद में पड़े हुए हो, आप लोगों की हरकतें ठीक नहीं हैं, आप लोग गुर्बत में और जहालत में पड़े हुए हो, और मजहबी और सियासी अशराफिया की तवज्जो इस तरफ दिलाना कि अपने अमाल और अपने करतूत ठीक कर लिए जाएं। तो इसको नेगेटिव इमेज नहीं कहते। अगर मैं आपकी गलती बता रहा हूँ तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैं आपका बदख्वाह हूँ। गलती आपको इसलिए बताई जा रही है कि आप उसको ठीक कर लें। मुझे अक्सर कहा जाता है कि जी आप गंद पे बैठते हैं, मक्खी की तरह हैं, आप मजहबी किताबों से भी गंद निकाल कर दिखाते हैं, आप सियासी अशराफिया से भी गंद निकाल कर दिखाते हैं। तो मैं उनको यही बात कहता हूँ कि हाँ भाई, मैं ही वो मक्खी हूँ जो तुम्हें गंद दिखाने आई है कि ये गंद है, इसको साफ कर लो। अब आपकी मर्जी, आप मक्खी को बुरा भला कहें या अपना गंद साफ करें। तो नेगेटिव इमेज तो होता है हर बंदे का। जब जो भी बंदा सीधी सच्ची बात कहेगा उसका नेगेटिव इमेज बनेगा। उसको भले आप मौलाना मौदूदी को देख लें, उन्होंने खिलाफत और मलूकियत लिखी, उनके खिलाफ हो गए। जावेद गामदी साहब को देख लें, डॉक्टर सरार अहमद साहब को देख लें। हर बंदा जो सीधी सच्ची बात करेगा, ऐसी कई मिसालें पेश की जा सकती हैं। उमर भाई, बाकी तो सब ठीक है। जिस तरह आपने सोशल मीडिया पे आपका कंटेंट होता है, वो तकरीबन 100 में से 80% लोगों का कहना है कि वो मुतनाज़ है, और आपको डर खौफ नहीं होता कि कहीं पे चपेड़ें पड़ जाएं, कहीं पे कोई कुछ भी मार जाए? ऐसा बहुत कम होता है। एक्सट्रीम लेवल पर कोई जा करके मार पीट शुरू कर दे या आपके ऊपर हमला कर दे। गो कि हमारे पास जुनूनी बहुत ज़्यादा हैं। हमारे यहाँ जिस किस्म का इश्क़ रसूल हम लोगों ने प्रमोट कर दिया है कि किसी दूसरे की बात नहीं सुननी, और अगर किसी ने कोई बुरे अल्फाज कह भी दिए हैं तो उसका मतलब हम खुद से डिसाइड कर लेते हैं, नहीं भाई उसने जो कहा है, वो जो क्या कहना चाहता है वो हम डिसाइड करेंगे। तो किसी के ऊपर भी आप इल्ज़ाम रख करके उसको गुस्ताख कह करके कत्ल कर देते हैं। एक बैंक गार्ड ने एक मैनेजर को मार दिया है। आप फिर इसी तरह से आप देखते हैं कि अदालत में, कमरे अदालत के अंदर लोग कत्ल कर देते हैं, जेल में लोग कत्ल कर देते हैं। तो अदम बर्दाश्त तो है। इस मजहबी अदम बर्दाश्त के खिलाफ भी हमें ही बोलना पड़ेगा कि यार कोई भी मसला हो, आपको कत्ल करने का इख्तियार नहीं दिया गया। अगर आपके सामने कोई शख्स कुरान को आग भी लगा दे तो भी आपको इजाज़त नहीं है कि आप उस पर हमला कर दें। कोई शख्स आपके सामने रसूलुल्लाह को या अल्लाह को गाली देता है तो भी आपको इजाज़त नहीं है कि आप उस पर हमला कर रहे हैं, उसको कत्ल करें। ये टोटली कानून का दायरा इख्तियार है। आप ज़्यादा से ज़्यादा ये कर सकते हैं कि उसकी आप कंप्लेन कराएं, पुलिस में दें, अदालत में जाएं, उसके खिलाफ गवाहियाँ दें, उस पर मुकदमा साबित करें। काजी और पुलिस का काम है उसको सज़ा दे।
कमर भाई, इत्फाक से आप इस वक्त डेरा गाजी खान आए हुए हैं और आपने अगला आपका जो सफ़र है वो तौसा शरीफ का है। पिछले दिनों आपने सोशल मीडिया पे एक तौसा शरीफ के हवाले से एक पोस्ट की थी, वो काफ़ी मुतनाज़ा हुई थी, तौसा के दोस्त भी नाराज़ हुए थे। एक तो मैं ज़ाती तौर पे, क्योंकि मेरा ये इलाका है और मैं भी जानता हूँ, कुछ उस पोस्ट में इंफॉर्मेशन जो थी वो गलत थी। उस पे मैंने आपसे रिक्वेस्ट भी की थी, आपने खैर पोस्ट डिलीट भी कर दी थी, ये भी आपकी आला ज़रफ़ी है। तो ये मालूमात आपको किसने दी थी? मतलब जो भी आपने जो कुछ लिखा था, मैं उनको उस पर डिस्कस नहीं करना चाहता, वो आपने किस बुनियाद पे वो मालूमात लिखी और क्यों? मालूमात ज़ाहिर है, देखें शाहिद भाई, आप भी साफ़ी हैं, हमें भी खबरें पढ़ते, अखबार पढ़ते और सहाफ़त करते कुछ 10-12 साल हो चुके हैं। हमने ये देखा था और हमारी एक एजम्पशन बन जाती है ना कि ये जो कोसलमान का इलाका है या कच्चे का इलाका है, ये है ही जराइम पेशा लोगों की अमाजगाह। यहाँ पर कत्ल गारत, डकैती, चोरी और डकैत यहाँ छुपे बैठे होते हैं। अब बल्कि ये जो पूरी पट्टी है आपकी, डेरा गाजी खान और जामपुर, राजनपुर, ये एक तरफ से कोसलमान में, एक तरफ इनके कोसलमान है और दूसरी तरफ कच्चे का इलाका है। तो आपको असलहा यहाँ पर मिल जाता है। आप तंबाकू की काश्त यहाँ बहुत ज़्यादा है। इसी तरह से आप देखते हैं कि नहीं, तंबाकू की काश्त का जुर्म से तो कोई वास्ता नहीं है कमर भाई। तंबाकू जुर्म नहीं है, बजाते खुद जुर्म नहीं है हाँ। तंबाकू, लेकिन उस तंबाकू से जो कुछ बनता है, जैसे पोस्ट की काश्त तो नहीं हो रही ना यहाँ पर, नहीं वो नहीं हाँ, तो तंबाकू को हम लोग बतौर जुर्म नहीं कह सकते, लेकिन यार आप तंबाकू की जगह गंदम भी तो उगा सकते हो, गंदम भी तो लगी हुई है। नहीं, ये तो एक हमारी और डिस्कशन आ जाएगी अगर आप ज़राअत के हवाले से बात करें। लोग कहते हैं कि कमर नकीब जो है वो जानबूझ के लोगों के जो जज्बात हैं उन्हें छेड़ता रहता है पॉपुलैरिटी के लिए। ये भी एक तरह की इमोशनल ब्लैकमेलिंग है। आपके अकायद जो भी हों, अगर आपके अकायद पर या आपके नजरियात पर सवाल उठा दिया जाए और आपके पास जवाब ना हो, तो आप कहें जी मेरे जज्बात मजरू हो गए। अब नहीं है। अगर हम किसी मजहबी को उसकी किसी किताब का हवाला दे रहे हैं और उसे बता रहे हैं कि ये चीज आपकी किताब में गलत लिखी हुई है, अब जब उनके पास जवाब नहीं है तो वो कहते हैं जी आप हमारी जज्बात को खराब कर रहे हैं। ओ भाई, इसमें जज्बात का क्या ताल्लुक है? आपने करना ये था कि आप जवाबात देते आपके सवालों का। ये जो लोग इल्हाद की तरफ जा रहे हैं, जो लोग लिबरल और सेकुलरिज्म की तरफ जा रहे हैं, मजहब से हट रहे हैं या मजहबी लोगों से उनके अंदर नफरत पैदा हो रही है, जब हमारे पास जवाब नहीं होते, हम लोग उस सवाल करने वाले को ही कहते हैं कि भाई वो तेरी ते दाढ़ी नहीं है, तू ते पैंट शर्ट पाई है, तेरे ते पांचे उत्ते नहीं हैं, या फिर उसके तेनू ते दुआए कनूत नहीं आंदी, तेनू शादियां कितनियां रकाता ने। ओ भाई, आपसे जो सवाल किया जा रहा है आप उसका जवाब दें, बजाय इसके कि आप दूसरे कोई ओ तू काफर हो गया, तू मुल्लद हो गया, तू फलाना हो गया। तो ये इमोशनल ब्लैकमेलिंग है। नहीं, ये तो आपके बारे में कयास पाया जाता है। बिल्कुल। मेरे कायद को छोड़े, मैं मुसलमान हूँ या काफर हूँ, इससे क्या फर्क पड़ता है? अगर आपकी किताब में कोई ऐसी उल्टी सीधी चीज लिखी है, भले वो शिया हो, सुन्नी हो, देवबंदी हो, बरेलवी हो, हम लोग मुकल्लफ हैं कुरान और हदीस के। मैं चूंकि इधर सवाल है तो मैं अपना अकीदा भी बयान कर दूं कि मैं सिर्फ अल्लाह और उसके रसूल की बात मानता हूँ, सिर्फ कुरान और हदीस मानता हूँ। इसके अलावा किसी शख्स को या शख्सियत को मानने की ये तो मज़रक के साथ ये तो सब जो अकायद भी हैं, जो मतलब फिक्र हैं, सबका यही कहना है कि वो अल्लाह और उसके रसूल की ही बात को मानते हैं। अलबत्ता थोड़े से जो मसालिक में कहीं पे इमाम का तस्वुर है, कहीं पे औलिया का ज़्यादा रिस्पेक्ट है, कहीं पे सहाबा की ज़्यादा रिस्पेक्ट है। बाकी तो सब की जो बुनियाद है, जो बेसिक्स हैं, रिस्पेक्ट अपनी जगह है सर, वो तो अल्लाह और अल्लाह के रसूल की है। जी बिल्कुल दुरुस्त है, सब मानते हैं इस चीज़ को। बिल्कुल दुरुस्त है। इस्लाम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ख़त्म हो गया ना, रसूलुल्लाह खातमुन नबिय्यीन है। अब इसके बाद किसी शख्स को मानने या ना मानने से इस्लाम पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। रसूलुल्लाह ने इस्लाम का
कंप्लीट कर दिया, कुरान कंप्लीट कर दिया, बेशक। इसके बाद अगर कोई शख्स पैदा हो जाता है या कोई शख्स मर जाता है, इससे इस्लाम पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अच्छा कमर भाई, ऐसा है कि जितने भी मुसलमानों के मकातिब हैं, तमाम मकातिब में गलतियां और चीज़ें हैं, हाँ, सब में हैं। बिल्कुल ऐसा। अगर हम उन गलतियों को मैनिपुलेट करने की बजाय उन्हें गायब करके हम उनकी सिर्फ खूबियों को आगे ला के यकजहती वाला या जो यूनिटी वाला पैगाम है, जो मैसेज है, उसे क्यों नहीं प्रमोट करते? और ख़ासकर आप सर, आप मुझे ये बताएं, कितने लोग हैं जो यकजहती का प्रोग्राम पेश कर रहे हैं? कितने लोग हैं जो मीठी मीठी दावत पेश कर रहे हैं? मौलाना तारिक जमील साहब बहुत ही मीठी दावत पेश करते हैं। मौलाना इलियास कादरी साहब दावत इस्लामी वाले बहुत ही अच्छी बात करते हैं, बहुत मीठी बात करते हैं, मुतनाज़ा बात नहीं करते। डॉक्टर ताहिरुल कादरी साहब, इसी तरह से कई ऐसे लीडर्स हैं जो मुतनाज़ा बात नहीं कर रहे, लेकिन क्या उनकी बातों से कौम मुत्तफिक हो रही है? नहीं, जिनके आप नाम ले रहे हैं वो खुद भी दो तीनों शख्सियत जो हैं वो मुतनाज़ा बन चुकी हैं। तीनों के ऊपर ना दरबारी मुल्ला होने का भी इल्ज़ाम पाकिस्तानी कौम लगाती है। देखें, एक शख्स के इलियास कादरी साहब ठीक है, जी, जी। लेकिन तारिक जमील साहब का दरबार तक नहीं पहुंचते, लेकिन उन्होंने कभी दरबार के खिलाफ भी बात। जब तक आप अपने अवाम के माइंड क्लियर नहीं करेंगे, उनके इश्कालात और उनके सवालात का जवाब नहीं देंगे, तब तक तो अवाम उन्हीं मबाहिस में पड़ी रहेगी ना। चलें कमर भाई, हम इन मसाइल में तो ना ही पढ़ सकते, ना ही हमारे हमसे हल हो सकते हैं। हाँ। बाकी आपका टूर, हम आपके लिए दुआ गो हैं, मज़ीद बेहतर हो, खुशनुमा हो आपके लिए। और आप हमारे पास यहाँ पे तशरीफ़ ले आए, मुख्तसर वक्त दिया, और हमारी तो यही ख्वाहिश थी कि आप यहाँ का इलाका जो भी एक्सप्लोर करते हैं, और हम अच्छा सब्ज़ फसलें हैं, ठंडा मीठा मौसम है, यहाँ रहते एंजॉय करते। खैर, आप तौसा शरीफ जा रहे हैं तो तौसा शरीफ आप ज़रूर ख्याल कीजिएगा, अपनी जान का भी और अपने जिस्म का भी। जी जी। तो कमर भाई का बहुत शुक्रिया। तो इंशाल्लाह दोबारा कभी मुलाकात होगी कमर भाई के साथ। ये उनका गलबन पहला इंटरव्यू था सोशल मीडिया के हवाले से। तो इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। थैंक यू। रैपो गाली करे सू, जानी रात रैपो गाली करे सू, मुद्दां दे हाले एक बैठूंगे सू, रात रैपो गाली करे सू।
जहां बहे